Hello friends, now we will learn about the diesel cycle. In previous lecture I had discussed about the Otto cycle, different process of Otto cycle and working principle of Otto cycle. Now we will learn diesel cycle. There is the difference between Otto and diesel cycle. Diesel cycle is also known as constant pressure cycle. Constant pressure cycle means the heat supply is at constant pressure. Heat supply is in constant pressure. So let us start with the basics of diesel cycle. Diesel cycle. In diesel cycle, in suction stroke, the inlet valve, through inlet valve, only air enters inside the cylinder. Only air enters inside the cylinder. And that air is compressed in compression process. So diesel cycle is ideal cycle for CI engine. CI engine means compressed ignition engine. Compressed ignition engine. Compressed ignition engine. So in suction process, only the air enters inside the cylinder through inlet valve. Now this air compressed in compression stroke and the piston moves upward to raise the pressure and temperature of that air. To raise the pressure and temperature of that air. And the temperature, जो temperature हमें बढ़ाना है, जो हम temperature वो self ignition temperature of the fuel. इसमें fuel हम क्या use कर रहे हैं? डीजल. तो डीजल के self ignition से above हम लेकर के जाएंगे. तो during compression we raise the temperature and pressure of the air and the temperature is above the self ignition temperature of that diesel fuel. So in fuel heat supply process, through the fuel injector, in heat supply process through the fuel injector we inject the diesel in vapor form. We inject the diesel in vapor form, and this diesel when comes in contact with that hot air gets ignited, and then when the pressure is rise, it will push the piston downwards. Again rest of the amount will come and the piston moves downward direction. So we maintain a constant pressure. As the diesel fuel enters, the pressure rise, piston moves slightly. Then again fuel comes, then piston moves slightly. So see the difference between Otto and diesel. In petrol cycle, the piston was at constant position, and due to spark, whole the fuel burned instantaneously. But in case of diesel cycle, the fuel is entering in the vapor form in not a simultaneously, through taking some part, some fuel, then some fuel, then some fuel, then whole fuel. So to complete fuel injection, it will take some time, and due to that time, piston slightly moves downwards to maintain that pressure. Piston slightly moves downwards from here to here. Piston moves from here. Now this is the process heat supply. हीट सप्लाई. तो पेट्रोल इंजन में क्या था, एयर और फ्यूल का मिक्सर पहले ही हो गया था और वो हमने भेजा था, स्पार्क की हेल्प से पूरा फ्यूल बर्न हुआ था. बट डीजल साइकिल में क्या हो रहा है, एयर को कंप्रेस किया है हमने और जो डीजल है वो हम ड्रॉपलेट की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में इंजेक्ट करा रहे हैं. और जैसे ही वो इंजेक्ट जो डीजल है वो कॉन्टेक्ट में आ रहा है, बर्न हो रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, प्रेशर राइज हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है. तो टू मेंटेन दैट प्रेशर द पिस्टन इज स्लाइटली मूव्स डाउनवर्ड. So that's why this cycle is constant. This cycle is constant pressure cycle. Heat addition in diesel cycle is at constant pressure. Now after complete heat addition, complete burning of fuel, a huge amount of pressure and temperature will rise, and that will push the piston downward, and that process is known as expansion process. जो एक ह्यूज प्रेशर जो जनरेट हुआ है, फोर्स जो एनर्जी आई है फ्यूल बर्निंग के बाद में, वो पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और उस प्रोसेस को हम एक्सपेंशन प्रोसेस बोलते हैं. अगेन आफ्टर एक्सपेंशन जो बर्निंग फ्लू गैसेज हैं उसको बाहर जाना है. अब वो क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, पिस्टन हमारा रुका रहेगा. कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, एंड देन एग्जॉस्ट. तो एक्सपेंशन, सक्शन एंड एग्जॉस्ट को हम साइकिल में नहीं ड्रा करते हैं. ड्यूरिंग एनालिसिस वी टेक ओनली 4 प्रोसेस. ड्यूरिंग एनालिसिस वी टेक ओनली 4 प्रोसेस. तो उसके बाद में एग्जॉस्ट में पिस्टन की अपवर्ड मोशन होगा और जितने भी फ्लो गैसेज हैं वो आउटसाइड द सिलेंडर चली जाएंगे. देन अगेन initial state air will enter inside the cylinder. So this is all about the working. If you talk about the process of diesel, isentropic compression,
कंप्रेशन किसका हो रहा है? एयर का ओनली। डीजल साइकिल में ओनली एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। पेट्रोल साइकिल में एयर और फ्यूल को कंप्रेस किया था, और डीजल साइकिल में एयर को कहां तक कंप्रेस कर रहे हैं? सेल्फ इग्निशन ऑफ डीजल से ऊपर तक कंप्रेस कर रहे हैं। नाउ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब हीट एडिशन में स्पार्क का यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कार्बोरेटर भी यूज नहीं हो रहा है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर यूज हो रहा है। डीजल को हम वेपर के फॉर्म में इंजेक्ट करा रहे हैं थ्रू फ्यूल इंजेक्टर, सो देयर इज नो स्पार्क प्लग इन डीजल साइकिल। अब जैसे ही वो डीजल जो है वो कांटेक्ट में आएगा वेपर उसका, वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है डीजल का उससे ऊपर है एयर का टेम्परेचर। नाउ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जब कंप्लीट डीजल एंटर होकर के बर्न हो चुका है, देन एक्सपेंशन होगा हमारा। देन एक्सपेंशन में पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन मीन जो बर्निंग फ्लू गैसेस हैं, जो हीट इनसाइड द सिलेंडर बची हैं आफ्टर एक्सपेंशन, उसको सिलेंडर से हमें बाहर भेजना है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। देन एग्जॉस्ट में हमारा यहां से पिस्टन हमारा उसको मूव करके थ्रो पूरे इनिशियल स्टेट में पहुंच जाएगा हमारा। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। और कोई भी अगर किसी को कंफ्यूजन है रिगार्डिंग डीजल, एंड दिस इज टीएस डायग्राम, हेयर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, हेयर हीट सप्लाई, हीट इन, हेयर वर्क आउटपुट जो हमें है, एक्सपेंशन स्ट्रोक जो है हमारा, एंड देयर हीट सप्लाई, हीट रिजेक्टेड जो हो रहा है हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही हम फर्दर इसकी एनालिसिस करेंगे। वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी ऑफ वाई डीजल साइकिल वर्क्स ऑन हायर कंप्रेशन रेशियो एंड पेट्रोल साइकिल वर्क्स ऑन लोअर कंप्रेशन रेशियो। पेट्रोल साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 9 to 12 होता है, डीजल साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो है 16 to 22 होता है। तो क्यों, क्या बेनिफिट है इसका, हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी के लिए गुड बाय।